everyone. My name is Priyanka. Welcome to today's decoding session of the Hindu, 9th of July 2023. From today's newspaper, we will be discussing about alternate dispute resolution, the Sangam age, the moderate alcohol consumption, and why China is limiting exports of raw materials. And regarding this Ayushman Bharat Health Service, we will cover this at the end of this week when we will be talking about all the schemes related to health or all the schemes of the government in a single lecture. And with respect to this news that why are India and Russia trade payment are in crisis, we will be covering in next 2 to 3 days when more opinion based or more editorial sections will come. So today's focus is these four editorials and also the Yemen crisis, which we had missed in our last lecture, that is yesterday's lecture because of the lack of timing. Okay. So let us begin with the alternative dispute resolution. Indian government, that is the union government, has decided to make all women courts, that is the Nari Adalat. The name given to this is the Nari Adalat, which would be in a form of alternate dispute resolution at the level of villages. But what is this alternative dispute resolution? See, looking at the pendency, चलो पहले इसके origin के बारे में बात करते हैं that it was the time of 1987 a law was passed in India that is known as Legal Services Authorities Act. And by this act, the encouragement was done कि कोर्ट के बाहर भी कुछ केसेस का सेटलमेंट हो जाना चाहिए. That means it encouraged the settlement of certain matters out of the court. And as a result, 1996 में a Arbitration and a Conciliation Act was enacted. But ऐसा क्यों किया गया? देखो यहां से हमें पता चल रहा है कि it had a statutory backing. So when I talk about the alternative dispute resolution, that means it has a statutory backing. But why the act was passed encouraging this? Because Supreme Court, High Court या जितनी भी lower court है, they are doing the best job. But still यहाँ का जो pendency of case है वो किसी से नहीं छुपा है. There are number of cases जिस पे अभी हियरिंग हुई नहीं. इतना ज्यादा बर्डन आ गया है इंडियन जुडिशरी पे. टू रिड्यूस दैट बर्डन, ऐसा भी है कि बहुत सारे केसेस जिसमें आरोपी 20 साल का 30 साल का हुआ है, लेकिन जब उसका केस सुना गया वो 40 साल तक पहुंच गए. So that means justice is delayed, and justice delayed is equal to justice denied. And that is something not suitable for a democratic country like India. Right? So, the need for ADR is to decrease the huge pendency of cases in the court. And yes, it is a viable, economic, and efficient way because there are certain small matters जिसके अंदर we feel that we should not do that चक्कर of the courts again and again. छोटी छोटी चीजों के लिए हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं 10 बार 20 बार, फिर हम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं. तो इतना ना हमारे पास टाइम होता है ना हमारे पास पैसा होता है. राइट. तो दिस इज द रीजन बहुत सारे केसेस को हम फाइल ही नहीं करते कि कौन तो अब उसके लिए चक्कर लगाएगा, कोर्ट चक्कर के चक्कर लगाएगा. So yes, this is a viable, economic and efficient way to give a greater satisfaction with sustainable outcome, and the procedure is very flexible also. Yeah. Now, what are the different types of ADR or alternative dispute resolution? The first one is your arbitration. Second is the conciliation. Third, mediation. And fourth is your negotiation. What is arbitration? आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि आपकी कोई पार्टी ए
और ये है आपके पास पार्टी बी। दोनों पार्टी एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के अंदर जाते हैं और ये जो ट्रिब्यूनल है इसके लिए जजमेंट सुनाता है। लेकिन इसके अंदर ये जो ट्रिब्यूनल हमने ऑर्गेनाइज किया है, यहाँ पे जुडिशियल इंटरवेंशन का जो रोल है वो खत्म हो जाता है। क्लियर है? देयर इज नो रोल लाइक अ जुडिशियल इंटरवेंशन, और इसमें आप फिर अपील भी नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा है आपके पास कंसिलिएशन। कंसिलिएशन में क्या होता है, आपके पास पार्टी ए है और आपके पास दूसरी है पार्टी बी। इन दोनों को असिस्ट करने के लिए थर्ड पार्टी होती है जिसका लेना देना ना इससे होता है और ना इससे होता है। तो यानी एक नॉन पार्शियल, नॉन बायस थर्ड पार्टी होती है जो इनको एक जजमेंट सुनाती है या फिर इनका सलाह मशवरा कराती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों पार्टी इसके डिसीजन को या तो रिजेक्ट कर सकते हैं या एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद फिर तो सर ये बाइंडिंग होगा। उसके बाद आप इसको वो नहीं कर सकते कि हम नहीं माने। इट इज ऑन यू कि आप इनके डिसीजन को एक्सेप्ट करो या मना करो, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद ये बाइंडिंग होता है। थर्ड होता है मीडिएशन। मीडिएशन में अगेन आपके पास पार्टी ए होगी, पार्टी बी होगी और एक थर्ड पर्सन होगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कंसिलिएशन और मीडिएशन में, यहाँ पे थर्ड पार्टी डिसीजन नहीं सुना रहा है, इट इज ट्राइंग टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ द पार्टीज, एंड जो डिसीजन होगा वो दोनों पार्टी म्यूचुअल लेंगे या फिर मिलजुल के लेंगे। और फिर आता है आपके पास निगोसिएशन। इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड और मोस्ट वाइडली यूज मेथड ऑफ एडीआर, जहां पे बिना किसी थर्ड पार्टी के इंटरवेंशन के आपस में लोग कोऑपरेट करके जो डिसीजन है उस पर आ जाते हैं। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज द संगम एज। आर्कियोलॉजिस्ट कम अप विद रेयर फाइंडिंग्स इन द तमिलनाडु। देखो आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो पास्ट की स्टडी करते हैं, यानी हमारी हिस्ट्री की स्टडी करते हैं विद हेल्प ऑफ सर्टेन एविडेंसेस, बिल्डिंग्स या जो टूल्स उनको मिलते हैं। करेक्ट। तो न्यूज है कि बहुत ही रेयर फाइंडिंग हमको तमिलनाडु से मिली है, यानी कि ये मोती वोती जो भी है बीड वगैरह। तो आपको एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा कि मोती आया है या क्या ढूंढने को मिला है। व्हाट इज सिग्निफिकेंट इज कि जिस ड्यूरेशन या जिस टाइमलाइन की ये बारे में बात कर रहे हैं कि इनको ये जो मिला है, दिस शोज एविडेंस of the Sangam age. It is a topic of your ancient history. GS पेपर 1 यूपीएससी की बात कर रहे हैं सर। Most frequently asked questions in the prelims are from Sangam age. तो हम संगम एज को डिटेल में तो सर हिस्ट्री में ही पढ़ेंगे, बट एक रफ आइडिया ले लेते हैं कि आपके पास जो कृष्णा रिवर है उसका जो साउथ वाला एरिया है, ठीक है, उसका जो साउथ वाला एरिया है उसके नीचे वाला जो एरिया है वहां पे एक संगम डायनेस्टी होती थी फ्रॉम 3rd century BC to 3rd century AD, and this timeline is known as the Sangam period. एंड इस टाइम का जो संगम लिटरेचर है दैट इज ऑल्सो वेरी फेमस, जिसमें बहुत ही क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में बनते हैं। तो फॉर दिस यू हैव टू सी अवर जीएस सीरीज जो हमारे अपकमिंग लेक्चर्स में आ रही है। फिलहाल हम जीएस पेपर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द साइंस एंड टेक पोर्शन। द बायोटेक्नोलॉजी विल बी द फर्स्ट थिंग वी विल बी स्टार्टिंग, बट जब हिस्ट्री का टर्न आएगा होपफुली इन द सितंबर और अक्टूबर यू कैन सी अबाउट दिस, दैट इज द संगम, राइट? Now coming to the next editorial or an article, that is moderate alcohol consumption has no health benefit. देखो आज का आर्टिकल कुछ खास नहीं है, बहुत ही कुछ कुछ छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है, तो ये थोड़ा सा फास्ट और शॉर्ट सेशन हो सकता है। इस आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है, देखो आप कभी भी कॉर्पोरेट्स तो नहीं बोलूंगी मैं, आई शुड नॉट ब्लेम इट कम्प्लीटली। द यंग जनरेशन और द न्यू जनरेशन जो अभी चल रही है, इनके अंदर ट्रेंड हो गया कि भाई अगर आप दोस्तों से मिल रहे हो तो फूल तभी लगो कि जब आपने अल्कोहल लिया है, आपने वाइन पिया है, आपने
दारू पिया है, विस्की पिया है, रम पिया है, वॉट एवर द टर्म्स आर, तो आप कूल तभी लगोगे कि यार यू सो बोरिंग, आप अल्कोहल नहीं ले रहे हो, लाइक बिना पिए मजे कैसे आएगा? दिस इज द थॉट प्रोसेस ऑफ टुडेज जनरेशन। बट इस अल्कोहल कंजम्पशन की जो कैटेगरी है उसमें दो लोग हैं। एक बोलता है कि यस वी आर अल्कोहलिक, और दूसरी कैटेगरी बोलता है कि नो वी प्रेफर ओनली वाइन। Wine is, and what excuses, I would not say what reason they give, what excuses they give to take alcohol are, it is good for the health, it increases the blood circulation, it is good for the heart. तो these are certain reasons जो आपने इन लोगों से सुने होंगे। तो ये आपका जो एडिटोरियल है वो इसी के बेसिस पे है कि जो मॉडरेट अल्कोहल कंजम्पशन उसका कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं है। एक्चुअली आपके पास एक बोटानिस्ट थे यूएस बेस्ड, उन्होंने इनिशियली ये थ्योरी दी थी अपने पेशेंट्स को ट्रीट करने के बेसिस पे कि आप अगर नो अल्कोहल ले रहे हो या फिर हाई अल्कोहल ले रहे हो तो कंपैरेटिवली आपका जो लाइफ स्पैन है वो कम है, लेकिन अगर आप मॉडरेट अमाउंट में अल्कोहल लेते हो तो इट बेनिफिट्स योर हेल्थ। इस थ्योरी को नेग्लेक्ट करते हुए या गलत बताते हुए यहाँ पे लिखा है कि ऐसा कुछ है नहीं, moderate alcohol consumption कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं है, हेल्थ बेनिफिट वर रिजल्ट ऑफ देयर हेल्दियर लाइफस्टाइल। नाउ why China is limiting the export of raw materials? This is a hot topic. देखो अभी अभी चाइना ने क्या किया है, कुछ आइटम्स जैसे कि आपके पास गैलियम हो गया या फिर जर्मेनियम हो गया, इन आइटम्स के ऊपर अगर आपको एक्सपोर्ट करना है चाइना से तो उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है। और रीजन उन्होंने क्या दिया, टू सेफगार्ड द नेशनल सिक्योरिटी, एंड एज अ रिजल्ट कुछ असेंशियल रॉ मटेरियल्स हैं जिनकी प्राइसेस बढ़ गई एंड जो फिर सप्लाई चेन है वो पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट हो गया है। चाइना के ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर उनकी कंट्री में किसी ने भी बिना परमिशन उनका एक्सपोर्ट किया तो इट वुड बी लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन। ऑलराइट, अब ये गैलियम और जर्मेनियम जो है काम किस लिए आता है देखते हैं। अगर हम गैलियम के बारे में बात करते हैं तो इट इज यूजफुल टू मेक सेमीकंडक्टर, बिकॉज सेमीकंडक्टर इज itself a very hot topic, we should make a different separate video on it, राइट। कि आपके पास जो सैटेलाइट्स होते हैं, एलईडी डिस्प्लेस होते हैं, और स्पेस और डिफेंस जो होते हैं उन सब में गैलियम जो काम आता है, ठीक है। और अगर हम जर्मेनियम के बारे में बात करते हैं तो इंफ्रारेड इमेजिंग डिवाइसेस है, ऑप्टिक डिवाइसेस है, इन सब में इनका काम आता है। लेकिन इसके रेस्ट्रिक्शन को लेके इतना हंगामा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर चाइना ने इसका रेस्ट्रिक्शन किया है तो मतलब कुछ तो कुछ रीजन रहा होगा उससे पहले। इसका इम्पैक्ट इतना क्यों पड़ रहा है या फिर वाई यूएस इज अपोजिंग और अदर कंट्रीज आर अपोजिंग? क्योंकि चाइना अकेला 80% गैलियम का प्रोडक्शन करता है, 60% जर्मेनियम का प्रोडक्शन करता है, और जो आपके यूरोपियन कमीशन के जो मेंबर्स है उसमें 71% इस पे डिपेंडेंसी है गैलियम पे चाइना से इंपोर्ट करने के मामले में, और 45% इस पे डिपेंडेंसी है। एंड इंडिया के लिए भी इट्स वेरी क्रूशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो इसके पीछे का जो जियो पॉलिटिकल बैकड्रॉप है वो क्या है उसको हम समझ सकते हैं। देखो 2022 में यानी कि एक साल पहले की ये बात है, यूएसए ने भी कुछ ऐसे किया था कि उन्होंने अपने कुछ एक्सपोर्ट पे कुछ मटेरियल थे, रॉ मटेरियल, उसके एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, और उन्होंने जो रीजन दिया था कुछ सेम ही था, दैट इज नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो चाइना की एबिलिटी है कि वो एडवांस कंप्यूटिंग चिप्स ना बना पाए या फिर सुपर कंप्यूटर्स को डेवलप ना कर पाए, इसलिए उन्होंने इसको रेस्ट्रिक्ट किया। एंड चाइना जो है बेसिकली इन सब चीजों को यूज करके एडवांस मिलिट्री सिस्टम बना रहा था, जो कि एक ऐसा वेपन सिस्टम बना रहा था विच कुड लीड टू मास डिस्ट्रक्शन। So leading to the national security, we are doing this, we are restricting the export of this, and वही चाइना ने किया।
लेकिन इन सब का जो इम्पैक्ट है वो इंडिया पे क्या पड़ेगा? देखो, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई चेन में डिस्ट्रक्शन हो रहा है, प्राइस हाइक हो रहा है। और अभी अभी इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक जो स्टेट विजिट हुई है यूएसए के, जहाँ पे ये उन्होंने साइन किया है क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर एग्रीमेंट, वो भी डिले हो सकता है। करेक्ट? नाउ दिस थिंग इज क्लियर। नाउ कमिंग टू द our first thing, that is the Yemen crisis. What is Yemen crisis? देखो, आज के पेपर में या कल के पेपर में इसके बारे में क्या आया, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज येमेन क्राइसिस बहुत ही पुराना है। आपको अगर समझना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रीजन को समझना है, जोग्राफिकल लोकेशन को समझना है, उसके पीछे का एक हल्का सा हिस्ट्री देखना है। देखो, हुआ क्या था 1990 के अंदर, येमेन वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशन। ठीक है? हाउ? बाय यूनिफिकेशन ऑफ द नॉर्थ येमेन एंड द साउथ येमेन। यानी कि पहले ये दो पार्ट्स में थे, नॉर्थ येमेन में थे और साउथ येमेन के अंदर थे। और 1990 में इन दोनों का यूनिफिकेशन होता है और ये कंप्लीट एज अ नेशन फॉर्मेशन होता है। लेकिन ग्रेजुअली देखा गया कि इन दोनों के बीच में एक रिलीजियस या फिर जो कल्चरल डिफरेंसेस है वो बढ़ गए। रिलीजियस या फिर जो कल्चरल डिफरेंसेस है वो बढ़ गए। कैसे जी? ये जो नॉर्थ यमन वाला एरिया है, यहाँ पे आपके हाउदी मुस्लिम के जो लोग हैं वो रहते थे, जो कि शिया कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे आपकी मेजोरिटी जनता रहती थी, जहाँ पे जिसकी वजह से सरकार बनी है, गवर्नमेंट बनी है, और ये लोग जो है सुन्नी मुस्लिम को बिलोंग करते थे। अब हम बहुत ही ब्रीफ में शिया सुन्नी समझ लेते हैं। मिडिवल हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे यूपीएससी के सिलेबस में, आप वहां पे देखोगे कि प्रॉफिट जो मोहम्मद है, उन्होंने सेंट्रल एशिया में एक न्यू रिलीजन स्टैब्लिश किया, दैट इज इस्लाम। बट आफ्टर हिज डेथ, ये इस्लाम का प्रोपगेशन कौन करेगा, उसके डिस्कशन में जो पीपल थे, जो पॉपुलेशन थी, वो दो पार्ट्स में बट गए। एक ग्रुप कहता था कि जो ब्लड रिलेशन है प्रॉफिट मोहम्मद के, वो इसको आगे कंटिन्यू करे। और एक बोलता था कि इनका जो बहुत ही करीबी दोस्त था या फिर फॉलोवर था या स्टूडेंट था, डिसिपल था, वो इसको फॉलो करेंगे। और इसी तरह से इन दो ग्रुप्स के नाम पड़ गए, एक तो शिया और द सुन्नी। सो बेसिकली दीज आर टू कैटेगरीज, द टू ग्रुप ऑफ डिविजन ऑफ द फॉलोवर्स ऑफ इस्लाम। ठीक है? तो ये हो गया हाउदीज आपके पास शिया थे, और यहां से हम देखेंगे जो मेजोरिटी पीपल थे वो सुन्नी थे। क्लियर? अब जब ये क्लियर हो गया है, अब हम देखेंगे अफ्रीका का जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला जो रीजन है। और यहाँ पे आप मैप में फोकस में बहुत ही रफ मैप बना रही हूँ। ये है आपके पास येमेन, जो कि अरब नेशन के बहुत ही सदर्न टिप पे आता है। और इसके ऊपर यहाँ नॉर्थ में यहाँ पे आपको मिलेगा सऊदी अरब, और यहाँ कहीं आपको मिलेगा ईरान, फिर अफगान, फिर पाकिस्तान, और ये जो इंडिया इंडिया वाले जो रीजन है उस तरह से आप देख सकते हो। इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहाँ है आपके पास रेड सी, ये है आपके पास बाबल मंदब स्ट्रेट, और ये आ जाएगा नॉर्थ येमन और साउथ येमन। नाउ व्हाट हैपेंड कि ये जो येमन है, ठीक है, क्लियरली हम देख लेते हैं तीन चीजों के कंसिडर में। यहाँ पे नॉर्थ में आपके पास सऊदी अरब है, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द येमन, वन इज द हाउदीज वाला एरिया यानी कि नॉर्थ येमन, और एक है जहाँ पे सरकार है यानी कि जो गवर्नमेंट है वो है आपके पास सऊदी येमन, साउथ येमन। हाउदीज जो है काफी ज्यादा रेबेल करने लगे, दे रिवॉल्टेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट कि हमको माइनॉरिटी में नहीं रहना, वी वांट ऑटोनॉमी। और इस पूरी खेल में शिफ्ट तब आया जब यहाँ की जो मिलिट्री थी, जो कि इनिशियली गवर्नमेंट की तरफ लॉयल थी, वो शिफ्ट हो गई हाउदीज की तरफ, और हाउदीज जो है काफी पावरफुल हो गए। एज अ रिजल्ट इन्होंने येमेन की जो कैपिटल है यानी कि सना, उसको भी अपने अंडर कब्जे में कर लिया। तो अब भाई सऊदी अरेबिया को लगा डेंजर कि हाउदीज तो भाई पावरफुल हो रहे, पूरा यमन इन्होंने हमारे अंडर में ले लिया, अब नेक्स्ट ये हम पे भी हमला कर सकते हैं, है ना? और यहाँ पे जो ईरान है,
जिसकी सऊदी अरब के साथ बिल्कुल नहीं बनती, वो भी हाउदीज को कर रहा है सपोर्ट। रीजन क्या है भाई, तू सपोर्ट कर रहा है। हाउदी यहाँ पे है माइनॉरिटी में, शिया मुस्लिम, लेकिन ईरान जो है यहाँ पे मोस्टली क्या है, शिया। तो ये एज अ शिया दे विल सपोर्ट द सऊदी, और सऊदी अरब और ईरान जो है इनकी भी आपस में नहीं बनती। तो सऊदी अरब ने क्या किया, गवर्नमेंट का सपोर्ट किया और यहाँ पे मिलिट्री अटैक किया और रीजन दिया ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ ईरान। एंड दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे सदियों से ये शिया सुन्नी वर्सेस जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो रीजन ये है जिसके वजह से हम नाम बोलते हैं कि हाउदी इज रिवोल्टेड, या फिर जो गवर्नमेंट है उसकी वजह से ये हुआ है। तो बिकॉज ऑफ दिस कॉन्टिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हमेशा से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है देखी गई है। एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? पॉवर्टी, हंगर, malnutrition, ड्रॉट। अगर हम यूएन के बारे में बात करें तो इट इज द वर्स्ट अफेक्टेड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में। कि ऐसा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अभी तक कहीं नहीं हुआ है। Alright, so I hope the topic is clear regarding the Yemen crisis, the alternative dispute resolution, ADR, and the Sangam age, why China is limiting the export of raw material. Okay, so this is it for today. Thank you for watching my video. The valuable feedbacks are always welcome. If any doubts are there, please write down in the comment section. We will be reaching you soon via email ID. Okay, so you all can note my email ID as well. It's pihw876 at the rate gmail.com. Please note down this email ID pihw876 at the rate gmail.com. If you want to reach us for any query, for any doubts regarding the UPSC preparations, you can contact us here. And from today, as we said, that we'll be starting the GS section as well. So the upcoming lecture is on the biotechnology from the science and tech portion. And from October onwards, we will be starting the two optionals, which are very rare, that is the botany and mathematics. Mathematics will be taken by Mr. Bhuvnesh. So he'll be taking the mathematics section. Okay. So thank you for watching this video. I hope you liked it. So please subscribe my channel, like and share. Thank you so much.